Our parents, and of course the stars of the show, are graduating nursery class students. Today we celebrate their incredible journey, their laughter, their learning, and their readiness to take the next big step. Gurpreet, I'm so excited today. I really wish I would watch this program as a guest rather than being the host. मनदीप मैम, आपकी बात सुनकर मुझे एक मूवी का डायलॉग याद आ गया। अच्छा, कौन सा डायलॉग? कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। वाह, डायलॉग तो बहुत बढ़िया सुनाया है आपने, लेकिन आप कहना क्या चाहते हो गुरमीत मैम? इसमें कहना क्या है मैडम, नर्सरी का प्रोग्राम है, नर्सरी के बच्चों को ही करने दो। Really? Are you serious? How is that possible? मैडम, मुझे आपकी बात से एक और डायलॉग याद आ गया। अच्छा, कौन सा डायलॉग याद आ गया? Don't underestimate the power of our nursery kids. वाह, क्या बात है। They are confident enough to be the anchor of their own graduation. It's really a wonderful milestone. Wow, I cannot wait to see our amazing nursery graduates shine as the anchors today. It takes a lot of courage to be up on the stage in front of everyone. Being an anchor is a big responsibility, but I have all the faith in the world that our nursery friends will rock it. Big round of applause! नमस्कार है आपको, मन से है आभार। आप सभी को हम चुका दे सारा प्यार। आज हमारी मेहनत का सब देखेंगे परिणाम। हम हैं प्रस्तुतकर्ता आज के और आप हमारे मेहमान। हेलो एवरीवन, वेलकम 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 टू आवर सुपर डुपर exciting nursery graduation ceremony. My name is Swastik and I am thrilled to be your host today. और मेरा नाम यश है और आज के कार्यक्रम को मैं भी स्वास्तिक के साथ प्रस्तुत करूंगा। 5 years, remember when we first started here, we were tiny and maybe even a little scared. But look at us now. Yeah.
please come on the stage. And we request. Todo el mundo está en su viajillo en la disco afincao y la madre que no diga que yo aquí le he montado. Parents and center of attraction the students. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. Today we have gathered here for the nursery graduation in the form of a gradiesta. The school used to conduct this program from last many years, and every year we try to bring something new. We always try to impulse something new. This year also the students are going to get the recognition for their activity which they have performed throughout the year. Throughout the year they have done numbers of activities, and on the basis of that only now they are going to get the recognition. Remember that school always try to bring the best for the students, and continuously we are doing this one. Guru Harkishan Public School Lodi Road is known for its infrastructure, it is known for its academic excellence, it is known for its manpower, and it is also known for the discipline in the area. Whenever I used to talk to the parents when they are coming in the schools for the admission, they immediately say, sir, I feel that my child will be in the safer hand when I will give the admission in this particular school. I used to ask them, why you have selected GHPS? Sir, एक तो मेरा बच्चा safe रहेगा. The second thing is that one, I heard lots of activities. I know that one, the activity is very much important. Education excellence is the part of a school, but with that one, co-curricular activities, CC activities, sports, and other things is also important. School is the platform where a person it has been created as a social citizen. Why? Because in the end, the students had to move out from the school and join the society. That's why we try to create that type of a person which will be very useful for the society. स्कूल से बच्चा जब बाहर जाता है तो वो स्कूल का नाम रोशन करता है, सबसे पहले रोशन करता है नाम अपने पेरेंट्स का. और पेरेंट्स तब खुश होते हैं जब उनको लगता है कि हमारा बच्चा एक अच्छे स्कूल से पढ़ के निकला है, जहाँ पर उसको समाज में कैसे जिया जाता है, समाज के विविध लोगों को किस तरीके से सम्मान दिया जाता है, ये सिखाया जाए. It is very important. Why? Because until unless we will not create a good citizen, it is not possible that the country will not move ahead. देश एक मनुष्य चलाता है और मनुष्य एक समाज का हिस्सा होता है, और स्कूल समाज के उस हिस्से के लिए एक प्रोडक्शन फैक्ट्री का काम करता है जहां पर एक अच्छा नागरिक बन के स्कूल से बाहर निकलता है. गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल continuously do that one. And in this year also, numbers of things it has been added. I just want to mention over here, these are all the activities, these are all the things it is possible by the support of the school management and also by the support of our senior management. I am really thankful to the President Sir of BSGMC, Sardar Hardeep Singh Ji Kalka Ji, Sardar Jagdeep Singh Ji Kalu Ji, General Secretary, for their immense support. Whenever something is required, whenever management and I put our something in front of them, they immediately say, yes,
they never say no. So thank you very much, sir, for your support. And I also want to mention the support of our school management, especially our very enthusiastic chairman Sardar Parvinder Singh Ji Lucky. He used to put his efforts regularly. He is come to the school. The same thing is with the senior vice chairman Sardar Parvinder Singh Ji. He also present in the school daily for each and every support. हमेशा याद रखिए, कोई भी काम अकेले नहीं फोड़ा किया जाता। कहा जाता है कि कभी भी टीम हो, टीम ही किसी चीज को आगे लेके चलती है। और टीम के अंदर आती है स्कूल की मैनेजमेंट, स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल की एचएम, स्कूल के इंचार्जेस, स्कूल का स्टाफ, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, ऑफिस स्टाफ, ऑफिस सुपरिटेंडेंट और सारे। जब तक ये टीम मजबूत ना हो तब तक ये स्कूल आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकता। और यहाँ गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, द वे आई सी फ्रॉम हियर, ये एक टीम मजबूत रूप से आगे बढ़ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हम इस स्कूल को और हायर पोजीशन में लेके जाएंगे। There are few things I just want to mention over here, which we have been in this particular year. You people used to come over here. There are many old parents who had given their children in this particular school. Earlier, the infrastructure was different. जब आप स्कूल में आते थे तो आपको स्कूल अलग दिखता था, आज आपको स्कूल अलग दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं, by the support of the management. इंफ्रास्ट्रक्चर अपलिफ्टमेंट हो रहा है, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को बदला जा रहा है, रिपेयरिंग वर्क एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। एंड आई वांट टू टेल दैट कि इन दिस ईयर वी हैव इंक्रीज आवर द सीनियर सेगमेंट, यू कैन से कंप्यूटर लैब विद द नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स। पिछले साल जहां सीनियर सीनियर सेकेंडरी सेगमेंट में कंप्यूटर की संख्या खाली 25 थी, इस बार उसको करके 45 कर दिया गया है। इसी के साथ में स्कूल के अंदर में कंप्यूटर सर्वर इंस्टॉल किया गया है। So at present, the total number of a computer which is available for the students in 3 different computer labs, it comes up to 95 to 100, which is a new development for this year. इस साल हमने कुछ नई चीजें भी चालू की हैं। याद रखिए, बच्चे का डेवलपमेंट तब होगा जब वो अलग अलग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। एंड द सेम थिंग इज देयर। This year, our huge number of students, they have participated in different types of activities. Especially, I want to mention the activity which has been conducted by the Director of Education, जहाँ पर जोनल लेवल में हमारे huge number of बच्चों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन लेके आए। साथ ही साथ स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन लेके आए। और हमारे स्कूल का एक होनहार बच्चा केशव शर्मा क्लास 12 का, वो स्टेट लेवल में फर्स्ट पोजीशन लेके आया। There are number of other things which I want to mention over here, but there is a shortage of a time. This shortage of a time, I just want to tell you one more thing. हमने इस साल बहुत सारी नई चीजें चालू की, जिसके अंदर में हॉकी की कोचिंग हमारे यहाँ लगातार पिछले साल से चल रही है, और इस साल भी हॉकी की कोचिंग चालू की गई। साथ ही साथ गतका की कोचिंग हमारे स्कूल में चल रही है। आपको जानकारी होगी कि गतका मार्शल आर्ट के अंदर में आ गया है, तो इसलिए हमारे यहाँ लगातार गतका की कोचिंग चल रही है। और इस साल बाय द सपोर्ट ऑफ द मैनेजमेंट वी हैव स्टार्टेड द कोचिंग फॉर द स्केटिंग्स आल्सो। स्केटिंग हमने इस साल स्कूल में शुरू किया, जिसके अंदर में बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। कई बार जाके हमको को बोलना पड़ा कि बेटा दिस इज द लिमिट, क्योंकि हमारे पास में ग्राउंड जहाँ पर स्केटिंग किया जाता है वहाँ एक लिमिटेशन है। स्कूल हमेशा ये कोशिश करता है कि स्कूल के अंदर से एक अच्छा नागरिक बन के बाहर निकले, और लगातार हम इस चीज को करते जा रहे हैं। By the support of everyone, I just want to tell that this program it has been created. Here you should appreciate the efforts of the students who are conducting this activity. Especially this is an innovation. This is a really an innovation where the students of the nursery, they are anchoring the program. So this is a new thing which we have brought. और आप देखेंगे कि हमारे यहाँ के बच्चे जो डांस एंड अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे और जिनको प्राइजेस भी मिलेंगे, तो मुझे आप सबसे अनुरोध है कि आप अंत तक के रुकिएगा, लास्ट मोमेंट तक ये हर बच्चे का प्रोग्राम देखने के बाद जाइएगा। मुझे इतना तो विश्वास है कि आज आप आए होंगे तो अपने काम से छुट्टी लेके आए होंगे, दुकान में किसी को बैठा के आए होंगे, तो कृपया करके जब आप रुके ही हैं तो पूरा रुक के जाइएगा। हर बच्चे के एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि बच्चे ये प्रोग्राम
तैयार किया है, आप जो सामने बैठे हैं उनके लिए किया है। हमने तो प्रोग्राम बच्चे का पहले से ही देखा हुआ है, क्योंकि हमको पता है हर बच्चे में क्वालिटी है। So at the end, I just want to thank each and everyone and all the people who have created this one, all the teachers of the primary segment. Hats off to you. You people have put in the efforts, and definitely it will be a successful. And that's all from my side. Thank you very much. For inspiring us as always. Now I will request our respected Vice Chairman. ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। सब लोग पीछे भी देख ले। मैं गुजारिश करूंगी हमारे प्रिंसिपल जी, हमारे मुख्य अतिथि श्री मनोज तिवारी जी। तालियों के साथ उनका स्वागत करते हुए और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर सरदार जसमीन सिंह नोनी जी। I would request Dr. Neeraj Priya to please come on the stage for lighting of the lamp. Please, ma'am. May the radiance of this lamp inspire clarity, wisdom, and a shared sense of purpose. आए हुए प्रधान इंस्पेक्टर और डियर स्टाफ, पेरेंट्स, बच्चे, आप सभी का एक बार यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। और गुरु साहब की दी हुई फतेह के साथ एक बार जरूर हम अपना आपको अभिनंदन करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वो सभी बच्चे जो आज अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी करके सीनियर क्लासेस में जा रहे हैं, उन सभी को बकअप करने के लिए और उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि आपके किए हुए जो भी आपने बचपना अपना यहाँ गुजारा है, सीनियर लेवल पे भी आपको उसी तरीके से अटेंशन दी जाएगी, आपका ध्यान रखा जाएगा जिस हिसाब से बच्चों का, छोटे बच्चों का यहाँ पर ध्यान रखा गया। और बहुत सारी एक्टिविटी जो बच्चों ने छोटे रहते हुए यहाँ पे की, उस एक्टिविटी को आगे किस तरीके से लेकर जाना और बच्चों का जो है सामूहिक रूप से उनका दिमाग का, उनके शारीरिक का विकास हो सके और वो अपनी पढ़ाई में अपना पूरा योगदान दे सके और फिट भी रहें। केवल शारीरिक
दिमागी रूप से पढ़ाई नहीं, शारीरिक रूप से भी फिट रहना जो है वो रखना जो है इस विद्यालय का मेन मोटो है। बहुत प्रसिद्ध शिक्षा में खास ध्यान देने वाले श्री मनोज तिवारी जी हमारे बीच में हैं और इन्होंने भी, मैंने कई जगह पर देखा, कहीं पर भी इतने विकास के साथ, बेशक स्कूल और भी होते हैं तो कंपटीशन जरूर होता है, पर जो सेंट्रल स्कूल की जो देनदारी होती है समाज में, 3 सेंट्रल स्कूल जो है इन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में जो है वो खुलवाए, क्योंकि बच्चों को साथ लेकर चलने के लिए बहुत जरूरी है कि सबका विकास हो, सबका साथ हो, और बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो सबका विकास ऑटोमेटिकली हुआ। जबकि कोई जात पात ना देखते हुए उन्होंने उन क्षेत्रों में भी जो कमजोर क्षेत्र थे जहां पर, वहां पे केंद्रीय विद्यालय खुला है, क्योंकि उस क्षेत्र के बच्चों का भी जरूर विकास होगा। और मैं साथ साथ इनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि लास्ट टाइम जब वो हमारे स्कूल में आए थे तो मैंने इनको रिक्वेस्ट करी थी कि जब बच्चे यहाँ पर छुट्टी होती है तो उससे बहुत पहले पेरेंट्स लेने के लिए आ जाते हैं, तो पेरेंट्स को भी यहाँ पर सुविधा मिलेगी तो अपना समय यहाँ पर गुजारें। तो एक जो जिम होता है वो यहाँ पर आप जरूर दो, और मैं आप सभी पेरेंट्स को कहूँगा एक बार तालियों के साथ जरूर इनका धन्यवाद करें कि इन्होंने वो जिम की फैसिलिटी हमारे इस पार्क में, इस GHPS के जो लॉन है वहाँ पर मिलेगा। और बहुत जल्दी हम, क्योंकि सांसद साहब ने अगर करवाया तो जनता के लिए करवाया, और स्कूल जो भी है ये भी जनता का, कोई भी पेरेंट्स यहाँ पर आता है उसके लिए जरूर हम उसको ऊपर रखेंगे। बच्चों के साथ साथ स्टाफ के साथ साथ पेरेंट्स भी जरूर उसका लाभ उठा पाएंगे। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और वाहिगुरु के चरणों में अरदास करता हूँ कि हमारे सांसद साहब को इसी तरीके से सेवा करने का मौका मिलता रहे, और पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस तरीके से हमारे बीच में जो भाई बनकर सेवा कर रहा है, बेटा बनकर सेवा करता है, वो सेवा करने का मौका एक बार जरूर मिले, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सबका विकास, सभी को साथ लेके एक परिवार के रूप में जो चलने का जो उनका उद्देश्य है, हम भी इस परिवार के रूप में उनके इस उद्देश्य में एक एक कदम साथ चल के उनका योगदान बढ़ाएं और एक बार फिर मनोज तिवारी जी को इस क्षेत्र से जो है विजयी बनाएं। यही हम सबका उद्देश्य भी यही होना चाहिए, और हम सब इसी वाहिगुरु के आगे अरदास करते हैं कि उनको सेवा का मौका जरूर दें। मैं उन सभी का, आप सभी पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो अपने बच्चों के साथ साथ स्कूल को मोटिवेट करने के लिए भी आप आते हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे क्षेत्र में जो इतना सुंदर स्कूल गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल है, उस स्कूल से मेरा हमेशा ताल्लुकात बने रहता है। और वैसे तो विद्यालय जब अपना कार्य करते हैं तो वो अपनी धुन में होते हैं, बच्चों का भविष्य बनाना उनका उद्देश्य है, बेहतर भारत को नागरिक देना ये उद्देश्य है। लेकिन उसके साथ साथ स्कूल का प्रबंधन इतना सजग है कि वो जनप्रतिनिधियों से भी कैसे संपर्क करके रखना है। और इसमें जो हमें हमारे भाई परविंदर कोहली जी का जो साथ मिला है उसके लिए मैं बारंबार धन्यवाद करता हूँ। और हमारे प्रिंसिपल साहब तो उनको मिलने से इतना वो सहज है कि उनके अंदर एक भूख रहती है कि हम स्कूल के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और आप सभी सारे स्टाफ, अध्यापक के साथ साथ सारे स्टाफ, और ये स्कूल प्रबंधन ये भी सोच रहा है कि अगर पेरेंट्स आते हैं तो वो भी थोड़ी देर बैठ रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था हो। इन्होंने एक जिम की बात कही, अभी मैंने उसका पैसा सैंक्शन कर दिया है, बहुत जल्दी एक अच्छा जिम आप सबको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन इस सोच को मैं प्रणाम करता हूँ कि पेरेंट्स के लिए भी सोच रहा है विद्यालय, उस बच्चे को कितना अच्छा लगेगा जो यहाँ पढ़ता है। और शायद यही कारण है कि यहाँ एडमिशन लेने वालों की एक बड़ी भारी संख्या कतार में खड़ी है।
आप सब जितने अभिभावक आए होंगे और कुछ हमारे गेस्ट आए हैं, जैसे अभी रोपी भाटिया जी और इनके साथ साथ हमारे जसमीन जी, नोनी जी, आप स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। पहले भी हमारी आपसे मुलाकात हुई है सिरसा जी के साथ। हमारे यहाँ क्षेत्र के पार्षद हैं मुकेश बंसल जी, जो हमसे पैसा कम होगा तो उनसे हम ले लेंगे, उनके अकाउंट में से, काम थोड़ी रुकना है। और हमारे सभी जो बड़े बड़े लोग यहाँ सामने बैठे हैं, आप सभी लोगों को, दर्शन जी बैठे हैं, पुनीत शर्मा जी बैठे हैं, आशीष तिवारी जी बैठे हैं, बहुत सारे लोग हमारे हैं, यहाँ के सारस्वत जी बैठे हैं और हमारे जैन समाज के बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं और हमारे बीजेपी के जिलाध्यक्ष मनोज त्यागी जी, वो भी आ गए हैं। तो नहीं, अब सबका स्वागत हो गया, तो अलग से करने की जरूरत नहीं, मेरे स्वागत में हमारे सभी साथियों का स्वागत है। तो आज का दिन तो खैर हमारे लिए बहुत ही भाग दौड़ का है, क्योंकि आप सब जानते होंगे मैं सांसद तो हूँ ही, अगला प्रत्याशी भी बन गया हूँ। अब अगली बार फिर एक बार मोदी सरकार में नाम जो लिखा हुआ है वो फिर मनोज तिवारी का लिखा है। और ये सब होता है सर्वे से, लोग अपना सर्वे देते हैं और हमारे क्षेत्र के सर्वे के 92% लोगों ने कहा कि मनोज तिवारी को ही फिर रखा जाए। ये जो प्यार मिला है इस क्षेत्र का, और नरेंद्र मोदी जी का तो खैर कितना भी धन्यवाद करूं। मैं आगे भी आज आपको बोलता हूं, हमारे यहाँ एक श्यामलाल कॉलेज है, हमारे यहाँ एक अम्बेडकर कॉलेज है, तो ये लोग भी जब कुछ बात करते हैं तो मैं पैसे की कमी नहीं होने देता। और वैसे भी नरेंद्र मोदी सरकार में फंड की कमी नहीं है। अगला जो 5 साल होगा ना, जो आपके स्कूल के लिए और भी चीजें चाहिए होगी, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, आप बस प्लान करिए, एग्जीक्यूट कराने में हम उसके लिए खड़े रहेंगे। और कितने गुरुओं की कृपा से ये विद्यालय चल रहा है, जिस नाम से है वो नाम का भी इतिहास पढ़े तो कितना बड़ा बड़ा उसके पीछे उदाहरण छुपा हुआ है, त्याग छुपा हुआ है। तो आज तो खुशी की बात है, बधाइयाँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ नर्सरी के बच्चे जब क्लास 1 में जा रहे हैं तो उनको उनके लिए फंक्शन हो रहा है। अभी उधर खड़े हैं बच्चे, मैं देख रहा हूँ, उनके ड्रेस आप देखेंगे तो ये तो हम अभी तक ग्रेजुएट होने के बाद देखा था, जो नर्सरी से पहली कक्षा में जाने के समय ही देख रहा हूँ। कमाल का थॉट है, खुशियाँ हैं। और मैं अपनी वाणी को विराम देने के पहले मैं एक सबक सुनता रहता हूँ। हालांकि बहुत मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लूँ, तो ऐसे करने ठीक रहेगा। हाँ, मुझे थोड़ा नियम कानून समझा देना, कहीं बाद में वो ना हो जाए। तो मैं उसको अक्सर गाते रहता हूँ, बहुत लाइनें नहीं हैं, लेकिन आज के अवसर पे वो लाइन बहुत सुंदर होगी। लख खुशियाँ, लख खुशियाँ, लख खुशियाँ पात साइयाँ, जे सदगुरु नदर करे, जे सदगुरु नदर करे, जे सदगुरु नजर करे। लख खुशियाँ, लख खुशियाँ, लख खुशियाँ पात साइयाँ, जे सदगुरु नजर करे। मैं इन भावनाओं में हमारी तरफ से लख लख बधाइयाँ हैं। आप लोग इसी तरह से कार्य करते रहें और इसी कार्य के साथ हमारे बच्चे भी आगे परवान चढ़ते रहें, अच्छा करें जीवन में। ये हमारी तरफ से शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सबका हमारे ऊपर भी आशीर्वाद बना रहे। और मैं एक बात बता सकता हूँ, मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं खेल शिक्षक हूँ, मैं 1.5 साल एक स्कूल में पढ़ाया भी, और हम नियम कानून से खेलते हैं, हम हार जीत दोनों में समान रहते हैं।
इसलिए मैं आपको इस बात का विश्वास दिला सकता हूं कि अगला जो 5 साल होगा हमारा, अगला जो 5 वर्ष होगा, वो आप एक स्कूल के रूप में भी अपनी योजनाएं बनाइए। हम उसको पूरा करने के लिए हर सुविधा मुहैया करा के आपको देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं एक आदमी का नाम छूट गया था, वैसे तो नाम बहुत सारे छूट गए थे, लेकिन हमारे मंडल अध्यक्ष हैं ब्रिजमोहन शर्मा जी, उनका नाम लेना मैं भूल गया था। मेरे बड़े प्रिय भाई हैं। वैसे तो हमारे जिले के तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं, आशीष तिवारी भी हैं, रविंद्र चौधरी जी भी हैं, और कोई नाम भूल गया होगा तो माफ कर देना। सबको मेरा सतत नमन, आप सबको प्रणाम, आप सबका बना रहे आशीर्वाद और प्यार। फिर एक बार With swirls and twirls so neat and bright, who's the top writer? That's right, Gargi Tyagi and Advik Jain. Let's give them a big hand. Numbers are their playground, equations their symphony. They know how to count, be it chocolates or money. A great speech is a combination of